Camera, action. Action. Hi Anupam ji. Hello, Karuna ji. So, thank you so much for this invitation at first. Cut. Acha. Hi Anupam ji. Hello, Karuna ji. So how are you today? I am doing very well and thank you so much for this invitation first. You're very welcome. Cut. So, my dear friends, this is tuning fork. You have felt the vibration. In which part of your body you could feel it? You know, this can heal all the kind of ailments that we are dealing with, we are suffering from. It has healed people with diabetes, blood pressure, and many more ailments. It is the instant pain relief. So, if you are feeling from migraine for a long time, just use it and see the difference. Thank you. Let it bang. हेलो एवरीवन, दिस इज करुणा, योर होस्ट फॉर एग्जॉन टॉक शो। और अब मैं आई हूँ एक नए एपिसोड में नई चीज लेकर। हाल ही में हमने एक इवेंट किया था जिसका नाम था शक्ति उत्सव। तो जब मैंने शक्ति उत्सव किया है तो शक्ति तो मुझे यहाँ लानी पड़ी है। तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टुडे टू समवन जो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ से लेके फिजिकल हेल्थ भी बोल सकती हूँ मैं, लेकिन ये इनकी यूनिक तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं और उनका नाम है अनुपम शक्ति। हाय अनुपम जी। Hello, Karuna ji. So how are you today? I'm doing very well. Yes, you are doing very well, and now we are going to talk to you with lot of things and going to make sure that everyone does very well, right? Wow, brilliant. So हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बताइए। सोच रही हूँ डालने को बालू ताकि राह खुल जाए मुसाफिर की। मैं अनुपम शक्ति। I really want to spread joy and happiness all around, and for that, I am trying to heal the heart within. हम सब लोग जब ब्रश करते हैं and then we really try to get rid of all the germs from our mouth. We take a bath to cleanse ourselves, our body, and be neat and clean, neat and tidy. पर तब क्या जब हम अंदर अपने भीतर के मर्म को ही नहीं साफ कर रहे हैं. So that's the healing which is required, and in that I help through sound healing, through psychotherapy, through all the kind of practices and modalities that I have learned, and I am here to help you out whenever you need. So अनुपम जी, आपने कहा कि you are into sound healing, but you also mentioned that you are doing a lot of other modalities, right? तो आप और कितने सारे modalities आप करते हो? Look, I have been teaching for 20 years. I have been dealing with teenagers. Okay. So when I had to know more about teenagers, because it, like when you are in the classroom of 50 students, and as a teacher, when you are passionate about teaching, you want to give the best to each and everyone. But there I realized that every child is different and they all need different sort of modalities to understand the same concept. Through that, I entered into the field of psychology. And in psychology, I came to know the basic behavior and attitude of people. And through that, I came into, I started to understand their writing skills, like what kind of writing they are presenting and how that is attached with their behavior. Then I entered into NLP training, and then from there, all the sort of psychotherapies to deal with their problems, because every child is coming with different set of problems. So you said you have 20 years of teaching experience. So you're a teacher, Right. which we mentioned. We did not. I forgot to mention in the introduction. Yes, so she's a teacher. So when you say that, looking at observing the behavior of students and the requirement, you started learning everything that is required to help Right. them. So हमने इसके पहले भी हम काफी we met our guests. Many guests were there who were into creating awareness about mental health, and we learned a lot of new things. But this is really unique thing which I saw today. You all can see this, right? There are a lot of beautiful things there, colorful thing, but a colorful thing सिर्फ thing नहीं है, ना ये showpiece है. I'm sure you'll be able to tell us when it comes to sound therapy and these things that you have kept here. How does it connect and what is it all about? Look, as I was sharing, that every modality works in a different manner for each and every people, each and every person and student. So this is actually something which even I have been very much impressed and deeply into it. Being a spiritual person, when I entered into the kind of meditation, yoga and all healing modalities, this thing is actually called tuning fork. Tuning fork are kind of these forks which is used with these rubber beaters. So it causes a kind of vibration.
You can see the vibration. So this vibration is good for your healing, like Okay. internal healing. Any sort of ailment is there, any kind of malfunctioning is there, it is healed through this proper vibration. So there are different colors here. So does that indicate any, it's like any specific color for any kind of ailment or anything as such? So it is based on the chakra system. So Okay. we have 7 chakras that we talk about. Oh, okay. So the 7 chakras, 7 colors. So each and every color is for each and every color is for different chakras. Okay. So this is for Mooladhara, root chakra, and then similarly it goes for all the different chakras. So Okay. it is said that if you are talking about the materialism on this earth, when we are come with different sort of dreams and expectations, तो उनके लिए जो आप मैनिफेस्टेशन करते हो कि इस लाइफ में क्या चाहिए, तो मूलाधार हुआ. तो उसी तरीके से हर एक Oh, चीज के लिए wow. एक अलग अलग फोक है इसमें. सो ये चक्र के बेस पर आप इसको यूज करते हो और Right. heal करते हो. ओके, सो आपने जब ये किया तब एक्चुअली आई कुड सी द वाइब्रेशन, आई कुड Right. फील इट, नॉट सी बट Right. आई कुड फील इट. तो जब हम आप कहते हो कि यू आर इनटू साउंड थेरेपी, ओके, इट्स ऑल अबाउट, इज इट ओनली अबाउट लिसनिंग और फीलिंग एज वेल? हाउ डज It's about vibration. I will share an example of Evelyn Glennie. Evelyn Okay. Glennie has been a kind of brilliant inspiration for many people with disabilities. She lost her listening capability when she was 8. By 11, she was profoundly deaf. But she became one of the most renowned percussionist. So जब उसकी कहानी हम बताते हैं तो कहते हैं she couldn't listen through her ears but through all and each and every part of her body. तो वैसे ही हम सिर्फ कानों से नहीं सुनते हैं. आपने कभी देखा होगा कि कोई अगर पीछे से आए and you can even sense the vibration. So that's what it Absolutely. is. So I will show you one more thing in this. You will see it vibrating only for a few seconds, maybe 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds. But when you don't see it vibrating, your eyes can't see, your ears can't hear, still your body can feel it when you're holding it. So that's what Oh. vibration is. वाओ, दैट्स नाइस. दिस इज समथिंग न्यू जिसके बारे में मैं पहली बार सुन रही हूँ और मुझे बहुत ही ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो हम ज़रूर इसके बारे में बहुत जानने की कोशिश करेंगे, बट उसी के साथ हम दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी ये एक्सपर्ट है. सो अनुपम जी, आपने बताया अबाउट साउंड थेरेपी. आपने बताया कि सिंस 20 years यू हैव बीन टीचिंग एंड हाउ यू एंटर दिस फील्ड. बट कोई ऐसा मोमेंट है आपकी इस जर्नी में जिसमें आप मेंटल हेल्थ को लेकर इतने कमिटेड हो गए हो? देखिए, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है लाइफ में. उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है ना. तो सही में मुझे भी कई बार ऐसा लगा जैसे मैं हार चुकी हूँ. मेरी शादी तब हुई जब मैं सिर्फ 12th पास थी. तो ये बहुत बड़ा एक तालीम मिला था मुझे कि अनपढ़ लड़की से शादी हो गई. लेकिन एक अंदर का जुनून था जिसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, बीएड किया और फिर वही स्कूल्स में पढ़ाती रही. एंड देन आई एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. फिर मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया एंड देन आई लर्नड ऑल द काइंड ऑफ साइकोथेरेपीज. और इस दरमियान साइकोथेरेपी में आने के बाद मुझे पता चला कि आप अगर म्यूजिक से कनेक्टेड हो, जिसको म्यूजिक को हम लाइफ बताते हैं, तो वो म्यूजिक इस साउंड के इन वाइब्रेशन से भी पैदा होती है. एंड देन आई वाज सो मच फैसिनेटेड इनटू द साउंड थेरेपी, साउंड हीलिंग, ट्यूनिंग फोक. वाओ, वेरी नाइस. सो आई मस्ट से जो भी आपको एक नेगेटिव तरीके से जो भी कहा गया, आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करके एक शक्ति दिखाई कि आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को बदल दिया. दिस इज रियली कमेंडेबल एंड दैट्स व्हाई इन द इंट्रोडक्शन आई सेड कि मैं शक्ति को यहाँ ले आई हूँ. क्योंकि जब आप किसी तकलीफ से गुजरते हो, कहते हैं ना, जाके पैर पड़े ना बवाई, सेका जाने पीर पड़ाई. तो जब आपको खुद तकलीफ होती है ना, तब आप जानते हो कि कैसे उस तकलीफ से बाहर निकलना है. और जब आप स्वयं जान जाते हो, देन यू रियली ट्राई टू पोर्ट्रे इट टू द पीपल. तो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के सेशन स्टार्ट किए नारी उत्थान के नाम से. एंड देन unfortunately I lost my daughter to depression, and that was the time I completely became committed to mental health awareness. जिसमें क्या होता है कि टीनेजर्स खुद कई सारे तकलीफों से जाते होते हैं. पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर, और अपने भीतर की जो जद्दोजहद है उससे भी जूझ रहे होते हैं. तो मेरा मेन जो मकसद है उस यूथ को सही रास्ता दिखाना, उनके पर्पस को जताना. तो व्हेन यू से कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से हम, जैसे आपने एक कहावत बताई कि जब तक हम खुद उस तकलीफ से नहीं गुजरते, हम शायद उसके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करते. इस बात पे मैं थोड़ी सी असहमत होंगी. बट हाँ,
हम जब पर्सनल एक्सपीरियंस से होके गुजरते हैं देन वी आर एबल टू फील कि क्या है. जैसे अगर मैं बात करूं, मैं सेक्स एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं एक्चुअली दे आर गोइंग थ्रू दोज काइंड ऑफ ट्रॉमास. उनका ना ईजी सा एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि अगर मुझे को ये नहीं मिल रहा है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो चलो इधर चल लेते हैं, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है और टाइम भी कट रहा है. तो उन चीज़ों में मे बी आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट बट आई नो देयर पेन कि वो कहाँ कैसे जा रहे हैं. इवन सेक्सुअल अब्यूज़ व्हेन वी टॉक अबाउट, तो कुछ मेरे ऐसे जो क्लाइंट्स भी आए हैं इन विच दे आर अब्यूज्ड बाय देयर वेरी क्लोज रिलेटिव एंड दे कांट डू एनीथिंग. इवन वी कांट इंटरफेयर इन दैट लीगली और इन एनी मैनर. सो उस केस में हम उनको स्ट्रेंथन करते हैं दैट हाउ कैन यू एक्चुअली हैव योर ओन वॉइस, how can you come out of it. And it do you you said that you have been interacting with the teen, the youth, okay? How easy do you feel it is, you find it easy to talk to them and they open up to you? So that's what I'm really grateful to my Lord Shiva. It is because of my 20 years of experience कि मैं कहती हूँ कि मैं बच्चों के नस-नस को जानती हूँ. Wow. वो क्या फील कर रहे हैं. अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और मेरे क्लास में अगर कोई बच्चा, मैं 9 से 12 के बच्चों को डील करती हूँ, और जो बच्चे किसी भी तरीके के ऐसे फीलिंग से, ऐसे परेशानी से जूझ रहे होते हैं, उनकी आंखों में लिखा होता है, उनके बिहेवियर में होता है, उनके एटीट्यूड में होता है. सो आई रियली डोंट अप्रोच देम, आई मेक देम फील दैट आई एम देयर फॉर यू एंड इफ यू रियली नीड हेल्प, इफ यू रियली वांट एनी सॉर्ट ऑफ थिंग इन विच आई कैन प्रोवाइड यू गाइडेंस, यू आर वेलकम. तो ये एक बात रही है जिसकी वजह से बच्चे ओपनली मेरे पास खुद ही आते रहे हैं. एंड इवन इन द यूनिवर्सिटीज इन विच आई कंडक्टेड अ फ्यू सेशन, तो वहाँ के साइकोलॉजिस्ट को छोड़ करके, काउंसलर को छोड़ करके बच्चे मेरे पास अप्रोच कर रहे थे बिकॉज दे वर सो कनेक्टेड विद बाय द सेशन दैट आई हैव कंडक्टेड फॉर 3 hours. वाह, दैट्स नाइस. सो मैंने बच्चों के लिए इसलिए पूछा क्योंकि काफ़ी बार सिंस हम थोड़ा बहुत हम सेम काम करते हैं, तो मैं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कह रहे हो. तो काफ़ी बार मैंने देखा कि जो टीन एजर्स होते हैं, जो यूथ होते हैं, उनको अपनी इमोशंस को लेके क्लैरिटी नहीं होती है क्योंकि एक दे आर वेरी न्यू टू ऑल दीज इमोशंस एंड दे डोंट हैव दैट. Most of the time I've seen families don't accept their emotions or whatever they want to express. So एक काफी हमने एक टाबू बना लिया कि इस बारे में बात नहीं करनी, इस बारे में करनी है, ये नहीं देखना है, ये देखना है. So when they are very much confused, तो ये जो confused emotions होते हैं कि उनको किसी से express करने, तो आप कैसे उनको हेल्प कर पाते हो? हाउ यू कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर इमोशंस व्हेन दे देमसेल्व्स समटाइम्स आर सो कंफ्यूज्ड विद देयर इमोशंस? बहुत सही कहा आपने. कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब हम बच्चों को कहते हैं अरे तुम इतने बड़े नहीं हुए, अभी क्या ही कर लोगे, तुम अभी सोचने के काबिल ही नहीं बने, और तुरंत में कहते इतने बड़े हो गए और तुमको ये भी समझ नहीं आ रहा है. तो उनके लिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो वही शुरू हो जाता है. ट्रू. सो here the parents and teachers and the people who are dealing with them, they are more responsible than the child, the teenager, the youth himself. तो उनको अगर समझना है कि वो क्या फील कर रहे हैं. आज मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाने वाला हूँ एंड आई एम ट्रेम्बलिंग, आई कांट डू एनीथिंग. Who is responsible? Not just the child. When we say कि child is not confident because he has not got the abilities, it is the parents, the teachers, the environment. So कोई भी इमोशन जब बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसका रीजन सिर्फ वो नहीं. अभी जैसे आपने पूछा बच्चे आपके पास कैसे आकर के बताते हैं, I really don't go and tell कि बच्चा तो मेरे पास आना और explain करना. They feel like that okay, she is there, she can listen to me, and they literally portray everything that they are going through. Even their kind of intimate relationship that they have, they feel that this is the lady who can really listen to me, being non-judgmental, because that is what we claim, confidentiality and non-judgmental. तो ये अगर हम किसी के साथ भी पोर्ट्रे करें तो अपने आप खुलता जाता है और परत दर परत सब आपको सामने दिखाई देता है. Awesome. So आपने अभी हमने जो कहा कि confusion about emotions, तो आजकल बहुत ये कहा जाता है कि self love, इस पे बहुत फोकस किया जाता है. People talk about self love, but I have seen when we also talk about self love, people are still, even in that people have no clarity कि actually self love क्या होता है. Not that आप पूरा टाइम बैठ के मेकअप कर रहे हो या हमेशा, even if you're sad, people are you're expected to smile. So there is a lot of confusion and no clarity even about self-love. And when it comes to youth, there is again, it's a big pressure on them as well. So what do you feel as a koi habit hai, what do you think can be done on a daily basis and daily self-love? Not that ek saal mein ek baar wo theme party karo.
Very good question, and really it is very important to know the difference between self-love and also selfishness, self-ignorance. अब ये तीन बहुत ही डिफरेंट टर्म है और तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है. तो अगर हम बात करें सबसे पहले, क्योंकि हम सेल्फ लव के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेल्फ लव इज ऑल अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस. मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा ही हूं. अभी मैं बहुत दुखी हूं. इफ आई एम इन पेन, आई शैल एक्सप्रेस माई पेन, कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं आपके साथ सहज कंफर्टेबल नहीं हूं. आई शैल शेयर इट. अभी आपने कहा ना फेक स्माइल लेकर के, फेक स्माइल लेकर के सेल्फ लव नहीं हो सकती है. आप बिजनेस भी नहीं कर सकते हो. लोगों का मानना है कि आप एक बार दो बार बिजनेस कर लोगे उस फेक आइडेंटिटी के साथ, बट इट वोंट गो फॉर लॉन्ग रन. तो यहाँ जब सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है, दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस कम थ्रू कॉन्शियसनेस, कि अगर मैं आज परेशान हूँ, ये नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है. एंड व्हेन वी आर अवेयर, then we are able to accept ourselves, and when we accept ourselves, self love अपने आप होता है. And when you love yourself, you can love everyone else. Absolutely, that's very true. Love yourself. Okay, so आपने काफी सारे healing modalities सीखी है. तो ये डिफरेंट जो मैंने देखा, आपने थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपने ग्राफोलॉजी के बारे में बात की, हमने साउंड थेरेपी के बारे में आपने थोड़ा बहुत बताया है, फिर एंजल हीलिंग के बारे में आपने बात की थी. तो ये सारे डिफरेंट मोडालिटी, हाउ दीज कुड यू एक्सप्लेन कि हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू समबडीज मेंटल हेल्थ या उनका ओवरऑल वेलबींग. Okay, again here I will get into this personal experience of mine. I have been spiritual since I came into this world. I got my senses. I was very like ardent believer of Lord Shiva. और वो ओम नमः शिवाय करना, ये करते करते, but how the spirituality and the kind of rituals that we are doing changed into the kind of thing where I was really feeling connected to that universal energy. और ये ज़्यादा क्लैरिटी मुझे मिली जब मैंने एंजल हीलिंग और आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह किया. सो आई shall claim, I don't know how it is to be said, but I'm able to interact with my deceased daughter. She is no more, but she is there as an angel, and she has always been guiding me, always been showing with all the kind of signs or kind of symbols which she has given to me. So every moment in which, even the connection with you, the kind of interaction we are having right now, the words I'm using with you people right now, this is all what? How we are connected the dot from the moment we have come over here. तो अब कोई भी हो, चाहे वो टीचिंग है, साइकोलॉजी है, एंड देन ऑल द काइंड ऑफ हीलिंग मोडालिटीज हैं, ये सब किस लिए हैं? जैसे हम खाना खाते हैं, किसी दिन पिज्जा खा लिया, किसी दिन चावल दाल खा लिया, किसी दिन बिरयानी खा लिया, बट एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस. और उसके एन मौके पे आपको अगर चावल दाल और आलू का चोखा खाना है ना, और एकदम मन में हो रहा है, कोई कैसी भी डिश कहीं से ला के दे दे, इट वोंट सैटिएट योर टंग, because you need that chawal dal chokha. So this is all about what kind of modality, what thing you require, and everything has its own importance. तो अनुपम जी, हम थोड़ी देर पहले जब behind the camera बातें कर रहे थे, so I also got to know that you also do conscious moment trainer. You're being known as that. So what exactly is this? Consciousness actually means, like right now we are interacting, and as we are interacting, we are being aware कि हमें क्या करना है, क्यों करना है. इसका एक मकसद है. आपके जो भी आप NGO चलाते हैं या जिन लोगों से कनेक्ट करते हैं, अभी ये जो सेशन हो रहा है, everything has a motive. Right. So that is consciousness. But when we do anything, whatever we are doing without this consciousness, वो अपने आप कहते हैं ना हो रहा है, तो उसका इफेक्ट भी वैसा ही होता है, हो रहा है. तो मैं जब भी ये ट्रेनिंग लगती हूँ, उसका पहला जो मूल मंत्र है वो ये है कि whatever you are doing, and if you are doing it and it is not reflecting in the way to help you physically, mentally, emotionally, financially, spiritually, leave that, because you are not putting your consciousness in that. अब ये consciousness जो है ना, ये movement के थ्रू, so जैसे मैं यहाँ से उठ के आपकी तरफ आई, आपसे दूर गई, एवरी मोमेंट हैज इट्स मीनिंग. वैसे ही मैं रुक करके आपको ऐसे बैठ के देख रही हूँ, दिस हैज अ मीनिंग. सो हमको कहते हैं ये आपको अगर मैं ऐसे बैठ कर देख रही हूँ, सो दिस इज स्टिलनेस एंड मोशन. लाइक आई एम थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, व्हाट ऑल वी कैन डू टुगेदर, व्हाट ऑल कैन हैपन, एंड मे बी आई एम टू वरीड
and I want to work on it. There is one personal or professional, any kind of problem, I'm taking a walk on that. So that would, though I'm in motion, though I'm dancing, but I'm focused on only one point. So that is Oh, wow. motion in stillness. So that's the actually funda of conscious movement, and for that I have also started my own website and all the kind of company. Conscious Movement is Synergy. Okay, so what exactly, how does this help exactly? It makes you more aware, Okay. clear about your purpose. जब हम कहते हैं ना कि आपको क्या करना है, वो तो डिसाइडेड है कि मुझे Right. चांद छूना है, चांद तक जाना है, पर चांद तक जाना ही क्यों है? Why do you want to be there? तो जहां आपको पहुंचना है उसका why निकालना, purpose निकालना, that you get through this consciousness. Wow, that's amazing. So I'm sure this is something again new. मैं इनसे मिली हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये न्यू वर्ड इनके साथ एसोसिएट कर दूं मैं, क्योंकि मैं बहुत सारी नई नई चीजें सुन रही हूँ. तो आई एम रियली एंजॉइंग दिस एंड आई एम श्योर यू ऑल गाइज आर ऑल्सो एंजॉइंग. तो अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में जाननी है ना, तो आप इनसे जरूर कनेक्ट कीजिएगा, और इनके सारे डिटेल्स है ना हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं. सो वील कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन एंड विद अ शॉर्ट ब्रेक. So we saw how conscious moment trainer अनुपम जी is helping people in many ways. In fact, इतनी सारी modalities वो कर रहे हैं, लोगों की help कर रहे हैं. तो आपका मेरा ये पर्सनल सवाल है आपके लिए, जब आपके पास कोई हेल्प के लिए आते हैं, आप कैसे जज कर पाते हो कि कौन सी मोडालिटी किसके लिए सही होगी? यानी कि हमने बहुत सारे मिठाइयाँ डाल दी हैं. अब तुम्हें जलेबी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, बर्फी चाहिए, क्या चाहिए बताओ. तो ये किसका जजमेंट होता है, आपका या जो हेल्प सीख करने चाहते अभी हैं? देखिए, टेस्ट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, वैसे बिहेवियर टेस्ट होते हैं. Right. और कुछ चीज़ें जो होते हैं ना, काउंसलिंग के थ्रू ही समझ में आते हैं. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी. एक डॉक्टर का जो पेशेंट का विजिट होता है, सो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बातें सुन करके डॉक्टर बस सिर्फ सुन करके वो समझ जाता है और आपको दवाइयाँ Right. देता या विटामिन दे Absolutely. देता. और कभी कभी प्लेसिबो इफेक्ट काम करती है. कभी कभी क्या होता है कि जब बीमारी लगे कि बहुत एक्यूट है, क्योंकि वो लंबे टाइम से चली आ रही है और आप जानते हो कि इसका जो फाउंडेशन है उसमें कुछ ना कुछ है जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है. व्हेन यू गो थ्रू द टेस्ट, अब वो टेस्ट से, जैसे टेस्ट में मैं जनरली अभी जो बेसिक टेस्ट है वो ग्राफोलॉजी वाला ही लेती हूँ. आई टेक देयर हैंड राइटिंग एंड फ्रॉम देयर आई कम टू नो सो मेनी थिंग्स. मैं DMIT भी यूज करती हूँ. तो Okay. जिसमें थ्रू द फिंगर प्रिंट ऑल्सो दे आर एबल टू शेयर सो मेनी ट्रेट्स ऑफ देमसेल्व्स. और एक दो मीटिंग के बाद बच्चा या इवन पेरेंट्स, दोज हु कम टू मी, दे बिकम सो मच ओपन टू मी दैट दे आर एबल टू शेयर द थिंग्स. तो जब वो Okay. अंदर की बातें बताते हैं तब अपने आप सब बाहर आ जाती हैं और उसके हिसाब से जो उनको चाहिए वो उस हिसाब से मिलता है. Okay, so any modality you do, the results are going to be there. It's Right, yeah. So is right. their choice? What is their convenience? राइट. Oh wow, amazing. इवन व्हेन वी टॉक अबाउट साउंड हीलिंग और Yes. कॉन्शियस मूवमेंट, इट्स अ ब्रॉड टर्म. मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मूवमेंट इतना हो गया. अभी जैसे हम चक्रास के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मैं रूट चक्रा की बात करूं, मूलाधार चक्रा की, उसके ऊपर ही आप बहुत सारे आप योगा कर सकते हो. योगा के Right. थ्रू रूट चक्रा से कनेक्टेड हो सकते हो. सिर्फ मेडिटेशन, सिट एंड गेट इनटू इट. यू कैन यूज प्रॉपर पैटर्न, जिसको हम ग्राफोथेरेपी में यूज करते हैं, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो. सो इट्स बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट. आपको कौन सी किताबें पढ़नी पसंद है, तो जो पसंद है और जो आपको इफेक्टिव कर रहा है, मतलब आपके ऊपर असर कर रहा है, हम वैसा इस्तेमाल करते हैं. Wow, so this is सही कहा उन्होंने, बहुत सारी मिठाइयाँ रखी है, it's your choice. So आप इतना कुछ कर रहे हो, you're teaching, you're healing, you're helping people, you're a mother, you are an entrepreneur, एक professional हो as a teacher. So ये सारी इतनी सारी चीजें करके आप बैलेंस कैसे करते हो लाइफ को? Very good question. So that's what teaches me more, that how I can be productive, and that's the kind of example for everyone who is viewing. अभी मैंने एक 84-year लेडी का साउंड हीलिंग सेशन लिया. एंड शी इज इनटू दैट स्टेज. वो कहती है मेरे पे तो दवाई असर नहीं करता, मुझे नींद नहीं आती. यू वोंट बिलीव, व्हेन आई वेंट टू हर, शी सेड मेरा ना वो मुंह नहीं खुल रहा है बेटा. एंड व्हेन आई कंप्लीटेड द सेशन, शी सेड मेरा मुंह देखो,
नहीं खुल रहा है. So you see the difference is there. Anyone can see the difference, but she herself was not able to see it. Oh, that's a very good, interesting example. Okay, so आप अनुपम जी, आप इतनी सारे केसेस अब तक हैंडल कर चुके हो, खास करके यूथ के साथ. तो एनी एडवाइस दैट यू वांट, अ प्रैक्टिकल एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहते हो? सबसे बड़ा जो आज पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम है और हमारे बच्चों का भी प्रॉब्लम है, मैं यूथ की बात करूँ और अभी हम एडल्ट पे नहीं जाएंगे, दैट इज एडिक्शन. एडिक्शन में सबसे बड़ा जो एडिक्शन है सोशल मीडिया एडिक्शन या फिर मोबाइल एडिक्शन. अब क्या हो रहा है कि अगर मैं कहूँ कि पता है वो बच्चा ड्रग्स लेता है, एंड देन यू, हाँ कैसे कैसे हो सकता है ऐसा, एंड व्हेन आई से वो सोशल मीडिया, अच्छा ये तो नॉर्मल है, आम बात है, चलता है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू कैटेगरीज, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब बच्चा सोशल मीडिया एडिक्टेड है तो चल रहा है, जबकि आप अगर उसके जो आफ्टर इफेक्ट से देखोगे, दैट्स नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम ड्रग एडिक्शन. तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं सिमिलर हैं, पर जब बेसिक स्टेज पे है तो कहना चाहिए वो बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाता है, वो बिना मोबाइल देखे, मतलब दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव क्रिएटेड फॉर आवर यंग जनरेशन. और वो पैदा ही हो रहा है हाथ में मोबाइल लेकर के. व्हाट एडिक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट? यू हैव मेड हिम हैबिचुएटेड ऑफ इट. So this is not addiction, you have created that habit. So बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बस एक चीज़ है, if you really think that you are getting addicted to something, find out a substitute to it which is equivalent to that. आप अगर सोशल मीडिया एडिक्शन कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसा पता करना होगा अपने लिए, कोई 3 चीज़ें जो आपको उस एडिक्शन से दूर लेके जा सकती है. आपको सिर्फ माँ का प्यार, माँ की बात, टीचर्स की फटकार, लोगों की जो झड़प होती है, कोई नहीं रोक सकता है. आपको वो रोकेगा जो आपको इस एडिक्शन के बराबर का चीज दे रहा है. सो स्लोली एंड स्टेडली इट विल कम, इट विल टेक प्लेस, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट फॉर एनी काइंड ऑफ एडिक्शन. Thank you so much. I'm sure not only addiction, there are a lot of things Anupam ji can help you with, and so many modalities we have already spoken about. And जैसे उन्होंने कहा कि मिठाइयाँ हैं, आपको पिकअप करना है, but yes, please connect and understand your concern, understand कि आप जो फील कर रहे हो वो क्यों फील कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो. तो जो मिक्स ऑफ इमोशन और कंफ्यूजन ऑफ लाइफ होती है ना, उसके लिए कभी ना कभी किसी से तो कनेक्ट करना ही पड़ता है. तो राइट इंसान से कनेक्ट कीजिए, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू हेल्प यू इन अ राइट मैनर. सो दिस इज अनुपम जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट सुनने मिला है, एंड ऐसे ही हम बहुत सारे और इंस्पायरिंग लोगों से आपको मिलाएंगे इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपने सारे आस पड़ोस वालों को बोले हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. दिस इज करुणा ऑन एक्सॉन टॉक शो पावर्ड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी. Let it